Very good morning, friends. I'm Mr. Love Singh and the physics lecturer in the Virtual Academy. Now, I would like to say very good morning to all of you, and please say good morning to me. Now, today's topic is what? Now, our motto is what? With a new day, we are going to start a new topic. So, today's topic is unique topic and most important topic of this chapter. Suppose topic point of view, if you are going to discuss about the topic, then that topic is completely useful in your life also. That topic is what? Dimensions of physical quantity. Not just complete during the whole chapters overview we have studied about physical quantity, its unit, how it is used in day to day life, derived quantities, fundamental quantities, base quantities, about its unit, how it is derived. But if we are going to deal with how to determine its dimension, so basically to determine its dimension, shape and size, the most important topic of this chapter is that dimension of physical quantity. It is that dimension of physical quantity. Now before starting that topic, it's our 11th lecture of chapter number 2. Now as per my point of view, it's the last topic of the complete chapter. Now before studying the dimension of physical quantity, now basically what is physical quantity? If I have a question that what is physical quantity, question is arises in our mind that what is physical quantity. Now basically the quantity which can be measured by any instrument or devices, the quantity which can be measured with the help of any instrument or devices, it is known as physical quantity. Clear? What is physical quantity? The quantity which can be measured with the help of any instrument or device, that is known as physical quantity. Now, but sir, we are talking about dimension of physical quantity. So basically, dear student, basically dimension means what? Particular. If we want to determine the dimension of that physical quantity, then it is also depend on fundamental units and the fundamental quantities. If you are going to determine dimension of physical quantities, so particular of that physical quantities dimension is derived with the help of fundamental quantities, just like mass, length, time, temperature, amount of substance, like that. But in 11th standard we have to just deal with three main quantities. It's a mass, length and time. Mass, length and time. Now before starting that topic, I would like to give the proper definition of dimensional physical quantities. Dimension of physical quantities, the proper definition must be required to write down or explain anything. So before starting that, we would like to tell the dimension of physical quantity. The dimension of physical quantity, dear student, please say good morning to me. If you are attending my lecture, please say good morning to me, because I would like to know that how many of you are attending my lecture. Then please give me a thumb fast, dear student, fast. Now we are discussing about dimension of physical quantity. Now before starting every topic, we have to must proper knowledge of how to use, what is the proper definition, where we should have to use. Now good morning Anamika, good morning Anamika, good morning very much Anamika. Now before starting that topic is what? Dimension of physical quantity. Now what is the proper definition? So the dimension of physical quantity, what? The dimension of physical quantity is defined as the dimension of physical quantity is defined as what? We are going to discuss about what? Definition of dimension of physical quantity. So that clear, we are just discussing about the definition. Now Anamika is giving a thumb. If you have any doubt in any question, then you can ask me on the spot. Okay, if you are not understanding anything, then you can ask me question at that same time, at that same spot. Now we are dealing with dimension of physical quantity. It means what? We have a proper definition of dimension of physical quantity. Now before starting that, I have already told you what is physical quantity. What is physical quantity? The quantity that can be measured, it is known as physical quantity, or the quantity which can be measured with the help of
any instrument or devices or measuring devices, it is known as physical quantity. Now if dimension, the particular every quantity have must be its dimension. Now that dimension is totally depend on what? Fundamental quantities and fundamental units. So basically we have to learn that thing today. Clear? Now before starting that, we have a proper definition of dimension of physical quantity. The dimension of physical quantity is defined as, sorry, the dimension of physical quantity is the defined as the power. सर ये क्या बोल रहे हो आप? व्हाट इज पावर? यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? अगर डायमेंशन डिटरमाइन करना तो सर पावर कहाँ से आ रहा है? बट ऑब्वियस सर वी हैव अ क्वेश्चन दैट इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन व्हाट इज the thing of power? What is the use of power in this term? So before starting that, we have to learn the definition. So what is that? The dimension of physical quantity is defined as the power of which. Clear? It means what? The dimension of physical quantity is defined as the power of which. किसका power? किसका power? जो power indicate करेगा पर्टिकुलर दैट क्वांटिटी का, जो हमारा पावर के टर्म में होगा वही उसका क्या होगा? डायमेंशन. डेयर स्टूडेंट याद रखना, जो पावर में होगा वही होगा क्या? इसका डायमेंशन. नाउ सो दैट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is defined as the power to which the fundamental quantities. What? The dimension of physical quantity is defined as the power of which the fundamental quantities are raised. Fundamental quantities are raised. What? Raised, but in terms of raised in order to represent what? To represent. Now we are focusing on the proper definition of dimension of physical quantity. Represent what? क्या represent करेगा? Represent क्या करेगा? बट ऑब्वियस क्वांटिटी के बारे में. वी आर डीलिंग विद फिजिकल क्वांटिटी. तो बट ऑब्वियस जो पावर में वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? इट टोटली रिप्रेजेंट व्हाट? रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. क्लियर? दैट quantity. Now basically, now the dimension of physical quantity is defined as the power of which the fundamental quantities are raised in order to present that quantity. It means what? अगर physical quantity है, अगर उसको indicate करना उसका dimension, so before that we have to go. मैंने क्या बोला? वो आएगा derive कहाँ से होगा? हमारा fundamental quantities. Now fundamental quantities की जो क्या होगा? पावर में होगा. वो क्या डिटरमाइन करेगा? डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर? मैंने क्या बोला? द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज, मतलब जो डायमेंशन है, डेफिनेशन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये कैसे डिफाइन होगा? पावर ऑफ विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड. मतलब हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उसके रेस में क्या? हमारा पावर है, और जो पावर है वो इंडिकेट क्या करेगा? हमारा उसका particular dimension of that physical quantity. So it is a proper definition of dimension of physical quantity. Now basically physical quantity, but we have studied about mass, length and time in terms of unit. Now today I am just going to tell you three things just you have to keep in your mind during solving the equation of dimension of physical quantities. Which are the first is what? It's the mass. For mass it is m, capital M. For mass it's a capital M. For length it is a capital L. For mass it is a capital M. For length it is a capital L. Now what about time? For time it's a capital T. So basically in the dimension of that physical quantity, mainly we have to deal with these three fundamental quantities. We have to deal with these basically fundamental quantities: mass, length and time. Now mass is indicated by capital M, length is indicated by capital L, time is indicated by capital T. What after that?
अब सर ये है क्या? तो particular if you are going to determine the dimension of physical quantity, particular if you are going to determine the dimension of physical quantity, so the dimension is always determined in a closed square bracket. What is that symbol? Like that. Clear? It's a particular symbol of dimension of physical quantity. Now it's what? It indicates the square bracket, close square bracket for indicating the dimension. Now because it is a mass is what? Physical quantity. Now अगर मैं इसका बोलूं dimension क्या है? If you are going to deal with it, what is the dimension of mass? So it can be written as in square bracket is m. Now it is what? It is a dimension of mass and it is a dimension of that fundamental quantity. ये क्या इंडिकेट करा हमारा? ये हमारा क्या इंडिकेट करा? डायमेंशन ऑफ दैट मास. Now if you are going to deal with length, at that time we have to write like that, square bracket, in that bracket we have to write capital L. Now what is that indicate? It's indicating that it is a dimension of that length. It is a dimension of that length. Now if you are going to deal with time, if you are going to deal with time, so now at that time we have to write that time like that. Now ये जो हमारा है, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, वो क्या इंडिकेट करेगा? पर्टिकुलर हम लोग डायमेंशन से डील कर रहे हैं. क्लियर? सो बेसिकली हमने स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल है, सो इट इज इंडिकेटिंग डायमेंशन ऑफ मास. In a square bracket we have write length, so it is indicating dimension of length. Now time, it's indicating dimension of time. Clear? So we are writing square bracket because indicate the dimension. Clear student? Concept clear कि हमारा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता क्या, किसके टर्म में डिटरमाइन होगा. क्लियर? नाउ पर्टिकुलर मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों चीज को हम क्या करनी है? ये तीनों चीज से हमें डील करनी है. So basically in this 11th standard we have to deal with these three fundamental quantities. Now particular dimension we have to must write the square bracket. Clear? Now after that we have lots of example for this. We have a lots of example for this. Suppose we are to determine the size, dimension, so we have to follow this step. Clear? We have to follow this step. Now basically it can be written as in a same sequence like that, m l t, like that. If we are going to deal with, then this quantity can be written as like that. Clear? Dimension of mass, length and time. Clear? Now here we are just explaining in an individual way mass, length and time. Now just we take example. After that we have a complete vision of what? Dimension of physical quantities, dimension of that physical quantity. Now we have to take example. Now we are going to take a example. What kind of example? What kind of example? Now we can take that we have already seen that derived quantity is always and totally depend on. Good morning, Guru. Very good morning to all of you, dear. Now, those who are attending my lecture, please give me your thumb and say good morning to me. If you say good morning to me, then I will totally energize. Clear? Now, we are dealing with dimension of physical quantity. Now, it is always indicated in a square bracket, close square bracket. Now, after that, we have a lots of example. We have a lots of example that from that we get a proper what? Clear? Now, suppose मैं बोलूं we have to determine the dimension of volume. If I'm telling that what is the dimension of volume, अगर dimension पता करना है किसका, वॉल्यूम का, तो बेसिकली मैंने क्या बोला डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. तो पर्टिकुलर हमेशा क्या होता है? डायमेंशन किस में इंडिकेट होगा हमारा? लाइक दिस ब्रैकेट, दैट्स अ स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट. नाउ पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता क्या है? सपोज वी आर गोइंग टू डील विद वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होता है? L into B into H, length into width into height. Clear? Length into width into height. Clear? So it is basically L into B into H, like that. So basically length, width and height, it's all what? It is totally measured in terms of meter. So it is also, length is also what?
length is also what? Length is also a fundamental quantity. Now width is also a length. It is also measured in meter. Length is also measured in meter. Height is also measured in meter. So basically all these three are what? Length. L into L into L. Now it means what? यहाँ पे क्या हो रहा है? L into L into L. तो सर आपने डेफिनेशन में बोला कि रेस टू द पावर होगा, वो डायमेंशन इंडिकेट करेगा. तो बेसिकली डियर स्टूडेंट ये अभी हम लोग करेंगे ना. एल इंटू एल इंटू एल. बेसिकली अगर मल्टीप्लाई का टर्म है तो ऊपर के पावर क्या होते हैं हमारे? एडिशन. तो यहाँ पे क्या होगा? एल इंटू एल इंटू एल. इट मीन्स व्हाट? एल क्यूब. क्लियर. नाउ हियर यहाँ पे क्या आ रहा है? एल क्यूब. तो ये एल जो इंडिकेट कर रहा है ना वो हमारा डायमेंशन इंडिकेट नहीं करेगा. बट जो हमारा सपोज एल क्यूब आया तो ये एल हमारा डायमेंशन इंडिकेट नहीं करेगा. बट डायमेंशन क्या होगा? 3. ऑफ डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3. ना अगर इसको हमें किसके टर्म में लिखना हो? स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म में. एट द टाइम वी कैन राइट लाइक दैट. ना मैंने क्या बोला? साथ में कैसे लिखेंगे हम लोग अगर डील करना है तो? एम एल T, mass, length and time. We have to deal with these three quantities. We have to deal with these three fundamental quantities. Good morning, Dishita. Very good morning to all of you. Now, मैंने क्या बोला? Mass, length and time. तीनों क्वांटिटी को हमको क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. क्लियर तो हुआ होगा आफ्टर. बट हाउ कैन वी राइट लाइक दिस क्वांटिटी? तो बेसिकली वी हैव टू पे फोकस ऑन दैट. नाउ यहाँ पे क्या है? MLT के टर्म में लिखो. सपोज M लिखा मैंने, L लिखा, T लिखा. Mass, length and time. Clear? Mass, length and time. Clear? Now यहाँ पे मास कितना आ रहा है? मास कितना आ रहा है? मास दिख रहा है यहाँ पे? नामो निशान है मास का? No, it's a zero. It's a zero. So we can write zero into the power of a mass. Clear? हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मास का टर्म है नहीं है. सो हम लोग मास के ऊपर क्या लिखेंगे? जीरो, क्योंकि पावर में कुछ आ ही नहीं रहा है. तो मास का डायमेंशन जीरो. बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेंथ, तो लेंथ की पावर में कितना रेस्ट टू द पावर है? इट्स 3. इट्स 3. सो वी कैन राइट इन पावर इनटू द पावर ऑफ लेंथ इट्स 3. बट मैंने क्या बोला? हमें डील किसे करना? MLT. तो बेसिकली अगर स्टार्ट करो डायमेंशन इंडिकेट कर रहे हो तो जस्ट इन बिगिनिंग वी हैव टू राइट इट दिस स्क्वायर ब्रैकेट. आफ्टर दैट MLT. क्लियर? नाउ यहाँ पे मैं क्या है? मास का टर्म नहीं है. सो बेसिकली मास का टर्म है ही नहीं, तो मतलब रेज टू द पावर जीरो. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट रेज टू द पावर जीरो इन mass, for a mass. But if you are going to deal with length, so basically it's a L cube. It's a L to the 3. L की पावर में क्या? 3. So we have to write 3 raised to the power 3 of length. Now, if you are going to deal with time, T for time, M for mass, L for length, T for time. Now, what about T? Dear student, you have to give me your response during the lecture. You have to give me your response during the lecture. So now, what about the time? Suppose mass का टर्म हमारे पास था ही नहीं तो जीरो लिखा. मास का टर्म जीरो. Now, length था. लेंथ का टर्म कितना था? 3. सो 3 यहाँ पे लिखा. Now, what about time? टाइम तो है ही नहीं इसके फॉर्मूले में. अगर वॉल्यूम का कभी इक्वेशन पढ़ा है तो L इंटू बी इंटू एच, तो टोटली हमारा क्या हो? लेंथ ही है. मेजर किस में होगा? मीटर के टर्म में या सेंटीमीटर के टर्म में. तो तीनों क्या हमारा? लेंथ. तो वहां पे कहीं टाइम का टर्म आता है, मास का टर्म आता है? नो. सो वहां पे क्या होगा? टाइम तो है नहीं यहाँ पे, तो टाइम का टर्म क्या होगा हमारा? जीरो. क्लियर? सो इट इज नॉट अ डायमेंशन, बट 0, 3 and 0 इट्स इंडिकेटिंग द डायमेंशन ऑफ दैट वॉल्यूम. क्लियर हुआ? कहां से डिराइव हुआ? क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड अनामिका. इट्स अ जीरो. तो क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये कहां से आया? तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको यही डील करना है. सपोज वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, velocity, acceleration, speed, that's all can be write in this form. So if you are writing in this form, that indicate the dimension of that physical quantity. If we are writing that quantity in terms of like that, so it is indicating what? Dimension of that physical quantity. Now after the dimension of volume, we are going to take the example of dimension of area. Suppose dimension of area. Clear? We are going to deal with dimension of area. तो basically मैंने क्या बोला पहले?
हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होगा, क्लियर, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ लिखेंगे क्या, मास, लेंथ एंड टाइम। ये तीन क्वांटिटी पहले लिख दो, आप ब्रैकेट लिख दो, ये तीन क्वांटिटी पहले लिख दो। नाउ एरिया, एरिया क्या होता है हमारा, एरिया का फॉर्मूला, इट इज बेसिकली L into V, L into V, clear. Now length is also one dimension, it is measured in terms of meter. Width is also linear, it is also measured in terms of meter. So B is also L. मैंने जो already lectures लिया था particular as a before the demo lecture during the Google Meet, we have already studied about that. Now L, now B is, width is also a length, width is also a length. Now suppose ये हमारा है, ये हमारा, तो ये तो हमारा पर्टिकुलर 30 सेंटीमीटर है, सपोज 30 सेंटीमीटर है, तो बट ऑब्वियसली भी लेंथ है। अगर यहां से यहां इसका लेंथ ये भी 20 है, तो इट इज ऑल्सो लेंथ, इट्स 30, इट्स ऑल्सो लेंथ, it is 20, it's also a length. Now L into B, it's a length into width, clear? Suppose so it is also length, 30 centimeters is also length, 20 centimeters is also length, so L into L. It means what? L into L means, suppose it's a power 1. So now when there is a multiplication term, then we have to add that power. Suppose base are same and the power is 1 and 1, but यहाँ पे क्या हमारा multiply, तो at that time हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के पावर का एडिशन, तो L to 2, क्लियर, L के पावर में क्या होगा हमारा 2, क्लियर। तो नाउ हम लोग डील करें डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया, तो वहां पे क्या करना होगा हमें, डायमेंशन ऑफ एरिया से डील कर रहे हैं, तो बेसिकली मास है, यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे कहीं तुम्हें दिख रहा है मास का टर्म, कहीं दिख रहा है आपको? अगर मैं बोलूं एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, इट्स L into B और L square, क्लियर। बट इफ यू आर डीलिंग विथ अ लेंथ, तो वहां पे मास आ रहा है, नो यहाँ पे कहीं मास दिख रहा है आपको, तो बेसिकली रेज टू द पावर में क्या होगा मास के, इट्स अ जीरो, इट्स अ जीरो। सो मींस क्या, डायमेंशन क्या होगा मास का, जीरो। किसके अंदर, एरिया के अंदर डायमेंशन क्या होगा मास का, जीरो। जब कभी भी पावर है ऊपर, जितने भी पावर है MLT के टर्म में वो इंडिकेट करेंगे क्या, हमारा डायमेंशन, क्लियर ना, मास के टर्म में जीरो। बट व्हाट अबाउट द लेंथ, अगर लेंथ की बात करो तो यहाँ पे क्या है, L into L, पावर 1 प्लस 1 2, तो लेंथ के पावर में क्या है हमारा 2, लेंथ के पावर में रेस टू द कितना है 2। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ के ऊपर 2 नहीं, 2 इंडिकेट क्या कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया, लेंथ का कितना डायमेंशन है, इट्स अ 2 इंडिकेट क्या कर रहा है, डायमेंशन ऑफ दैट लेंथ। नाउ व्हाट अबाउट टाइम, if you are going to deal with dimension of area, formula of area, then there is a need of time, वहां पे टाइम का टर्म होता है, नो, सो टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम इज टोटली जीरो, सो वी कैन राइट इट। नाउ डायमेंशन वी कैन राइट 0 to 0 for mass, length, time, it's a what, dimension of area। Student, we don't have focus on the rest of the topic, but we have to focus on that topic very well, because there is a lots of numerical based on this example, there is a lots of example based on this topic, so it have a lots of important, this topic contain a lots of important, so you have to pay focus during the lecture. Now we have to discuss about the volume, we had already discussed about the area. Suppose we are going to deal with the velocity, suppose we are going to deal with the velocity, if I'm asking to all of you that you have to find out the dimension of velocity, then how can we find out it? If I'm telling to you, if I'm telling to all of you that you have to find the dimension of velocity, then how can you find it? It's very easy, it's a very easy, just look here, what I want to explain to all of you, what I want to explain to all of you, just you have to pay focus, I will do all the things for you, just you have to pay focus all the time during the lecture, dears. Now after that we are going to find out the dimension of velocity, what we are going to find out the dimension of that velocity। now basically मैंने क्या बोला, बेसिकली जब स्टार्ट कर रहा था दैट टॉपिक, मैंने क्या बोला, मास को इंडिकेट करेंगे m से,
लेंथ को इंडिकेट करेंगे कैपिटल एल से, टाइम को इंडिकेट करेंगे कैपिटल टी से। तीनों क्वांटिटी है हमारी बेस क्वांटिटी। मैंने क्या बोला था कि जितनी फिजिकल क्वांटिटी कहां से डिराइव हो रही है, बेस क्वांटिटी, और तीनों ही बेस क्वांटिटी है ना, तीनों का जो यूज करें, तीनों ही क्या हमारी बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, दैट क्वांटिटी व्हिच आर नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। बट डिराइव क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी क्या है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, डिराइव quantity? No, it is totally depend on what, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड है, टोटली फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटी। बट बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी बोथ आर सेम थिंग। फंडामेंटल क्वांटिटीज और बोथ बेस क्वांटिटी आर नॉट डिपेंड ऑन डिराइव क्वांटिटी और अदर क्वांटिटी। क्लियर? ये हमारा क्या है, वो भाई का खुद का रूल है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, किसी की हेल्प नहीं लेता। बट डिराइव क्वांटिटी किसकी हेल्प लेता है, हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी की। क्लियर? नाउ मैंने क्या बोला, MLT से डील करना। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशन, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशन of velocity. So now basically velocity is indicated by v. Now dimension of velocity, तो velocity का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेसिकली velocity का फॉर्मूला क्या होता है, velocity का फॉर्मूला क्या होगा, इट्स अ displacement upon yes, I'm getting the answer from Anamika. Derived quantity is based on fundamental quantity. Very good, dear student, please give me your support. If you are supporting me, then I will try to give my best. If you have any doubt, then you can ask me anytime, anywhere, any spot. So don't feel any kind of hesitation during asking the question. Clear? Now we are dealing with dimension of velocity. तो मैंने किससे बात करना है, dimension of velocity. तो basically before starting that, we have to just clear concept of that formula. I'm getting the answer from the Dishita. It's a displacement upon time. Very good, Dishita. Your answer is perfectly very correct. It's a displacement upon time. So बस हो गया, डायमेंशन आ गया। मैंने क्या बोला, किसका डायमेंशन लिखना, वेलोसिटी का डायमेंशन। तो बेसिकली वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना, तो बेसिकली पहले क्या होगा, स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट m लिखो, l लिखो, t लिखो। क्लियर? ये तुम्हारा टर्म हो गया। बट नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट्स नाउ डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, लेंथ है ना। अगर मैं यहां से घर जा रहा हूं, सपोज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम आवर स्कूल टू होम, देन वी हैव ट्रैवल जस्ट 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इट्स अ व्हाट, इट्स अ लेंथ ना, डिस्प्लेसमेंट आल्सो अ लेंथ, बट व्हाट, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की क्या लिखेंगे, एल, कैपिटल एल। नाउ मैं टाइम के लिए क्या बोला था, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एल। दिस टाइम के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। क्लियर? हो गया, हो गया ना, आ गया डायमेंशन, आ गया। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट अ मैजिक, वी हैव टू जस्ट वे फोकस डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली वी हैव अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, displacement upon time. Now what is displacement, it is a length, it is a one kind of length. Basically displacement is also a length. Clear? Now length is indicated by capital L. Now upon time, if you are going to deal with a time, then it is always indicated by capital T. Before starting that topic, I already told you that if there is a mass, it is indicated by capital M. For length, it is indicated by capital ML. Now if you time, it is always indicated by capital T. Clear? Now displacement, length, time, capital T. Now clear हो गया। Now अब आते डायमेंशन पे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट इक्वेशन के अंदर आपको मास का टर्म कहीं दिख रहा है, अगर फॉर्मूला देखो वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहां पे हमारा L अपॉन टी आया, मतलब L के पावर में 1 है, T के पावर में 1 है, बट ऑब्वियस क्लियर है, L अपॉन टी के टर्म। तो ना मास का टर्म यहाँ पे है कहीं, मास का टर्म है यहाँ पे कहीं, नो। तो मास के पावर में क्या होगा हमारा, मास के पावर में क्या होगा हमारा डायमेंशन, इट्स अ टोटली मास के पावर में रेज़ टू द पावर कितना होगा, इट्स अ जीरो, इट्स अ जीरो। क्लियर? इट्स अ जीरो। क्लियर? मास के टर्म में क्या होगा हमारा, जीरो। नाउ व्हाट अबाउट लेंथ, व्हाट अबाउट लेंथ। नाउ इस क्वांटिटी के अंदर लेंथ कहीं दिख रही है, इस फॉर्मूले के अंदर कहीं लेंथ दिख रही है, यस।
लेंथ हमारा दिख रहा हो, कितना पावर में 1, यहाँ पे पावर में कितना है लेंथ के 1, तो हमें क्या करेंगे, लेंथ पे कितना पावर है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 है, लेंथ के टर्म में है, तो यहाँ पे पावर में कितना है 1। अगर किसी के पावर सपोज ये क्वांटिटी दी रही है x है, y है, z है, लाइक दैट, सपोज मैंने बोला ये रहा x y एंड z, लाइक दैट है हमारे पास ना। अगर ये x y z इंडिकेट कर दिया मतलब क्या है, पावर में तो 1 है ना, अगर किसी के ऊपर कुछ नहीं इंडिकेट है मतलब पावर में क्या होगा हमेशा 1, क्लियर। सो आफ्टर दैट लेंथ के टर्म में पावर में 1 है, रिस्ट द पावर 1 है, सो लेंथ की पावर में यहाँ पे क्या होगा, इट्स 1। तो ना dimension of mass is 0, dimension of length is 1, now last quantity and last dimension for time। now यहाँ पे जो displacement upon time है, length upon time है, क्लियर, लेंथ अपॉन टाइम है L by T ना। यहाँ पे टाइम का टर्म दिख रहा है, टाइम का टर्म दिख रहा है आपके पास, टाइम का टर्म है, यस वी हैव अ वैल्यू ऑफ टाइम इज बट डियर स्टूडेंट, बट जो हमारे पास टाइम के टर्म में है L अपॉन T है, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1 है, टाइम के टर्म में है, बट टाइम कहाँ है हमारा, अपॉन में है, कहाँ पे हमारा अपॉन में। अगर यही टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, जो पावर पॉजिटिव है वो कन्वर्ट होगा किसमें, नेगेटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा TS2 -1। अगर यहीं पे पावर नेगेटिव होता, अगर ऊपर ले जाते, ठीक है, तो हमारा पावर होता नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट यहाँ पावर क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाएंगे तो बट ऑब्वियस नेगेटिव, क्लियर। तो TS टू द पावर -1, तो यहाँ पे T का पावर क्या होगा -1। सो डायमेंशन क्या इंडिकेट करेगा, एम एल टी के लिए इट्स 0 1 -1, क्लियर। इट्स अ डायमेंशन फॉर व्हाट, वेलोसिटी, क्लियर था। मास 0, लेंथ अपॉन टाइम था L बाय T, -1 इंडिकेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा टाइम क्या था, अपॉन में था, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इंडिकेट माइनस की टर्म है, क्लियर। अगर ये नेगेटिव टर्म होता, ऊपर जाता पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, क्लियर। नाउ we have just discussed about what volume, area, velocity. Now next example we are going to take density or acceleration or force. You can ask me anything, density, velocity, force, mass. In example, fast in example, just you can give me your topic, I will find out the dimension of that physical quantity. Fast, type your question fast. Now we have discussed about dimension of velocity, area and the volume. After that we are going to find out the dimension of, what, we are going to find the dimension of force. What, force, simply force थोड़ा क्या है, अलग है। तो basically in a starting that dimension of force. Now force is what, mass into acceleration. Force is what, mass into acceleration, clear। force equal to mass into acceleration, clear है, mass into acceleration। but dear student you have to pay focus, mass into acceleration। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, मास को इंडिकेट किससे करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला क्या लिखना है, ऐसे एम एल टी लिखी दो, ठीक है, हमेशा ऐसे करो। तो फोर्स का फाइंड आउट करना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम अगर मोमेंटम फाइंड आउट करना, p इक्वल टू mv, तो वहां पे मास होगा इनटू वेलोसिटी। बट यहाँ पे मैंने क्यों लिया, f इक्वल टू ma है, m इनटू a है, मतलब वहां पे हमारा क्या आएगा, कवर होगा टॉपिक एक्सेलरेशन, वहां पे टॉपिक क्या कवर होगा हमारा, एक्सेलरेशन। सो डियर स्टूडेंट, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बट ऑब्वियस मास के लिए डायमेंशन क्या है, मैंने मास के लिए क्या बोला था, मास के लिए क्या इंडिकेट होगा हमारा, कैपिटल M। तो ये मास का टर्म तो क्लियर हो गया, बट व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन सर, अगर मास का तो टर्म क्लियर हो गया, इट्स इंडिकेटेड बाय कैपिटल M, बट व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, तो बेसिकली व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट्स velocity upon time, it's the velocity upon time, yes or no, velocity upon time, yes or no। so for acceleration it is a velocity
अपॉन टाइम। क्लियर? तो नाउ यहां पे इसका टर्म खत्म हो गया। We have totally deal with mass. Now we are going to deal with another topic. It's acceleration. So mass का term तो clear, it's a capital M. But what about acceleration? So basically acceleration is nothing but it's a velocity upon time. Now mass तो term ऐसे ही है sir, mass हो गया. Now velocity क्या होता है? Velocity is what? It's a meter per second. Velocity की अगर बात करो तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. क्लियर? यही होती है, यही होती है. अगर आपको ऐसा ही नहीं पता तो भी डिराइव होगी. नो लेंथ, यहां पे मास तो हो गया हमारा, बट एक्सेलरेशन इट्स अ वेलोसिटी अपॉन टाइम. द वेलोसिटी अपॉन टाइम की यूनिट क्या, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी हमारी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट अगर मैं वेलोसिटी की पूछूं, इट्स अ मीटर पर सेकंड. इट्स अ मीटर पर सेकंड. क्लियर है? क्या है? मीटर पर सेकंड. तो अगर मीटर पर सेकंड हो गया किसके लिए? वेलोसिटी के लिए. किसके लिए? वेलोसिटी. बट टाइम भी तो है, टाइम भी है. तो क्या? तो सिंपली एक चीज पे फोकस करना, हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, हम लोग को ज्यादा लोड नहीं लेना है. सिंपली वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी की क्या थी हमारी? वेलोसिटी क्या थी? व्हाट इज वेलोसिटी यार? व्हाट? Fast, Aerostin. If you have any doubt, then you can ask me. Now, basically, acceleration is velocity upon time. So, velocity is what? Displacement upon time. Displacement upon time. Velocity से हम लोग डील करें, किससे डील करें? We are just dealing with velocity. तो velocity क्या है हमारी? m1 l1 t1. Very good, Dishita. Very good. Now, velocity upon time. तो velocity की हमारा क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी. जस्ट यहां पे डील करो वेलोसिटी. वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट यहां पे टाइम का टर्म भी है तो इनटू टाइम. क्लियर? ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया. मास का टर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम. नाउ वेलोसिटी हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू जो टाइम का टर्म बचा वो. नाउ फर्दर जाएंगे तो मास. नाउ डिस्प्लेसमेंट मींस length. Displacement is nothing but it's a length. Now it is time, so t. Now again time, it's a time, so again t. Clear? So now we have formula for what? Force. तो बेसिकली मास की पावर में क्या है हमारा? 1. मास की पावर में क्या है हमारा? कुछ नहीं तो 1. लेंथ के टर्म में कितना हमारा? लेंथ के टर्म में कितना है? इट्स अ 1. नाउ व्हाट अबाउट t? t के पावर में 1. t के पावर में 1. तो बेसिकली हमारा कहां है? डिनोमिनेटर पे है, मतलब नीचे है अपॉन के टर्म में. तो बट ऑब्वियस 1 + 1 ts2 हो गया. बट नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे टाइम को, तो ts2 - 2. क्लियर स्टूडेंट? सो बेसिकली मास का टर्म कितना आ रहा है हमारे पास? 1. लेंथ का टर्म 1. t का टर्म -2. क्लियर? Clear? Concept clear for student? I'm getting the answer from the Dishita. M1 L1 T -2. Very good, Dishita. You have to pay focus just. Okay. Very good. Now clear हुआ? M1 L1 T -2. Clear? Any student have any doubt? Then you can ask me. Clear? Now after that, studying that kind of dimension, basically now we are going for the comparison. We are going for comparison. Clear? We are going for comparison. It means what? सपोज क्या करते हैं हम लोग मैक्स में सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. गुरु, आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल और नो डियर? यू हैव टू गिव मी योर रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम नॉट एबल टू see any response from you. So you have no response yesterday today, so you have to pay response. You have to give your response, dear. Now हमने डील किया वेलोसिटी, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स. क्लियर? जिसको ये आ गया ना तो उसको बट ऑब्वियस कंपैरिजन करना है. बट ऑब्वियस हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं. तो सेम एज इट इज हमें भी यहाँ पे क्या करना होता है? चेक करना होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक अ वन एग्जांपल फॉर दैट टॉपिक. क्लियर?
ना हम लोग किससे डील करने जा रहे हैं, किससे डील कर रहे हैं हम लोग। और याद रखना अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, 1 है 2 है लिखा हुआ है इक्वेशन में, तो हमारा क्या होगा, कंसीडर्ड नहीं होगा। सपोज अगर मैं बोलूं मार्क करूं काइनेटिक एनर्जी, नाउ बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, इट्स अ हाफ mv स्क्वायर, इट्स अ हाफ mv स्क्वायर। नाउ हम लोग किससे डील करने जा रहे हैं, कंपैरिजन। क्या करेंगे, क्या करेंगे, दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। नाउ एट द टाइम वी विल चेक दैट दे आर इक्वल और नॉट, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड or right hand side is not equal to left hand side. So basically we are going to compare kinetic energy is equal to potential energy or no. Clear? We are going to take kinetic energy is equal to potential energy or no. Clear? क्या कर रहे हैं, इक्वल है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, इसको क्या करना है, चेक। क्लियर? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, बिफोर स्टार्टिंग दैट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। on your demo lecture I already told you that what is kinetic energy. So basically when anybody in a motion, when anybody is moving or in a motion, that body is always possesses kinetic energy. When anybody is in a motion, that it always possesses kinetic energy. Now what about the potential energy, it's a store energy. Suppose मैं डैम का पानी है, सपोज पर्टिकुलर डैम कंस्ट्रक्ट होता है पर्टिकुलर हाइट पर, ना वहां पे ये हमारा जो डोर होता है, डैम का डोर होता है, उसके पीछे पानी स्टोर होता है। जब वो पानी मूव नहीं करता है ना, वो पानी क्या स्टोर है, वो डैम के जो डोर है उसके पीछे पानी स्टोर है, तो उस टाइम उस पानी के अंदर बट ऑलवेज कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। बट जब डोर ओपन हुआ, डैम का डोर जब ओपन हुआ, देन वाटर स्टार्ट टू फ्लोइंग, देन वाटर स्टार्ट टू फ्लोइंग, एट दैट टाइम जो वाटर इज किसमें, मोशन में। नाउ वाटर मोशन है तो बट ऑब्वियस उसके अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। नाउ बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, प्रूफ करना है। तो आफ्टर क्लियरिंग दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीट विद नाउ काइनेटिक एनर्जी, इट इज इंडिकेटेड बाय T, potential energy it is indicated by PE. Now kinetic energy का formula, if you are going to deal with kinetic energy, we have a must be knowledge of kinetic energy. So what is the basic formula for kinetic energy, it's a half mv square, half mv square। बट मैंने क्या बोला, कांस्टेंट टर्म का कभी भी डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म अगर दिया है उसको क्या करना है, हमें निग्लेक्ट करना। नाउ फॉर पोटेंशियल एनर्जी इट्स अ मास into g into h, mass into gravity into height। क्लियर? नाउ इस कंडीशन में ग्रेविटी का सर फॉर्मूला तो हमें नहीं पता है, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट द ग्रेविटी, ग्रेविटी का फॉर्मूला नहीं पता, तो बेसिकली एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू जी। कंपेयर करते हैं तो जो एक्सीलरेशन का हमारा डायमेंशन होगा तो सेम एज इट इज ग्रेविटेशनल का भी हमारा डायमेंशन होगा ना। आफ्टर दैट yes, are you catching my words or no, dear student? If you are understanding well, then you can give me your thumb, because I want to get motivation from you na? If you're giving me your thumb, then I will be totally motivated। Clear? Now and kinetic energy equal to potential energy prove करना है, हाफ mv स्क्वायर mgh। ना पहले करते क्या, हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट यू हैव टू पे फोकस, बिकॉज this kind of explanation are not given in your NCERT book in another book, so I am just giving or explain on that way. Clearly just you have to pay focus, right hand side equal to left hand side। now kinetic energy, potential energy, ke pe, now kinetic energy half mv square। now what about potential energy, it's a mgh, mass into gravity into h। now here g is what, replaced by a, maybe g is replaced by a, why, acceleration equal to gravity। तो जो डायमेंशन हमारा जी का होगा, ए का होगा एक्सेलरेशन का, वही डायमेंशन होगा हमारा जी का। I'm getting the thumb from the Dishita and the Anamika, just two student, yes very good। ना मैंने क्या बोला, कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसको उड़ा ही दो, कांस्टेंट टर्म है 1/2, उसको क्या करना है, कंसीडर ही नहीं करना, तो बचेगा क्या, mv स्क्वायर mgh। क्लियर ना? मास है, मास का डायमेंशन बट ऑब्वियस क्या होगा, मास का डील किससे होगा, कैपिटल एम, कैपिटल एम, मतलब पावर में तो 1 ही रहेगा इसके ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी तो अभी तक पढ़ा हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं फिर से कर रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मास के पावर में 1 है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ। और टाइम क्या होगा हमारा? टाइम क्या होगा? कैपिटल टी। तो मास के पावर में क्या होगा? 1, क्योंकि यहां पे mv स्क्वायर है, m इज मास, m इज नथिंग बट इट्स अ मास, तो मास के पावर में 1। बट वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी के टर्म में क्या है हमारा? वेलोसिटी के टर्म में क्या है? स्क्वायर डियर। तो ये हमारा स्क्वायर भी मत भूलो, क्लियर है? वेलोसिटी के टर्म में क्या है? स्क्वायर। तो क्या होगा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट्स अ लेंथ, तो इंडिकेट क्या होगा? कैपिटल एल। बट व्हाट अबाउट द टाइम? इट्स इंडिकेटेड बाय कैपिटल टी। ना बट दोनों के पावर में क्या है हमारा? स्क्वायर। तो एल के पावर में 2, टी के पावर में 2। क्लियर हो गया? इतना क्लियर? डीलिंग विथ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? We are dealing with kinetic energy. Now we have just equation and dimensional formula for kinetic energy. क्या है बट? क्या है सर? आपने बताया नहीं। तो ये देखो डियर स्टूडेंट, m के पावर में 1, m के पावर में रेज टू द 1, l के पावर में 2। Now what about t का स्क्वायर? बट ये क्या हमारा अपॉन में है, t स्क्वायर का हमारा अपॉन में है, बट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला? अगर कोई टर्म पॉजिटिव है नीचे अपॉन में, तो ऊपर जाके क्या हो गया? हमेशा नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा क्या है? पॉजिटिव, तो ऊपर जाके क्या होगी? नेगेटिव। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब ना हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या आया? m1 l2 t-2। ये तो प्रूफ हुआ, बट सर हमारा ये भी तो आना चाहिए भाई। अगर ये डायमेंशन, पोटेंशियल का डायमेंशन सेम आया, अगर दोनों का डायमेंशन सेम आया, तो मतलब क्या? हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ना ये क्लियर हो गया। बट mgh के टर्म पे है सर, mgh। तो नाउ mgh नाउ बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा? मास। m क्या है? व्हाट इज m? इट्स अ मास, सो इंडिकेटेड बाय कैपिटल m। कैपिटल एम। पावर में क्या होगा हमेशा? बट ऑब्वियस कुछ नहीं, तो 1 ही होगा ना। हाइट है, अभी जी को छोड़ते हैं, हाइट है। अच्छा जी से डील करें, जी से डील करते, जी है सीक्वेंस में करते, जी से डील करो। तो जी इक्वल टू क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। ग्रेविटी इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से डील कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन, अभी जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था वो वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ एच क्या हमारा? पर्टिकुलर। ये सपोज मैं हूं खड़ा सामने आपके, लाइव एग्जांपल, एच हूं, मेरी हाइट है, मतलब वो क्या है? मेरी हाइट है क्या? 5.10 या 175 सेंटीमीटर, मतलब क्या है वो? मेरा लेंथ। तो एच इज ऑल्सो अ लेंथ, इट इज नथिंग बट इट्स अ लेंथ। तो इसको इंडिकेट किससे करेंगे? कैपिटल एल। बट पावर में कितना है? इसके पावर में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये भी क्या होगा हमारा? पावर में 1। सर इसका हो गया, इसका हो गया, बट ये सोर्स सॉल्व होगा तो मतलब हमारा सब डाउट क्लियर होगा, सही है ना? अगर ये सॉल्व हो गया तो हमारा सभी डाउट सॉल्व हो जाएगा। सो m1 तो हो गया ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट इट्स अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So there is need to, we have to write it, so we can write it. Velocity is nothing but a displacement अपॉन टाइम। ना ये टाइम का टर्म तो हो ही बचा, और एक वो भी टाइम लिख दो। क्लियर? एल के पावर में 1 ना। अब क्लियर होगा हमारा विजन, अब हमारा विजन क्या होगा? कंप्लीटली क्लियर ना। एम के पावर में 1, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट अ लेंथ। क्लियर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल किया घर से स्कूल जाने के लिए, या स्कूल से घर जाने के लिए, क्लासेस जाने के लिए, तो हमारा क्या होगा? वो भी डिस्प्लेसमेंट भी ऑल्सो अ लेंथ। तो वहां पे एल, लेंथ को किससे इंडिकेट किया? एल से ना। वहां पे पावर क्या है हमारा? इसके पावर में क्या है? 1 ही है ना, तो हमने क्या लिखा? 1 ना, अपॉन टाइम इंटू टाइम, टी के पावर 1, फिर अगेन टाइम है तो टी के पावर 1। क्लियर ना? ये हमारा हो गया टी के पावर 1, टी के पावर 1, बिकॉज टाइम इंटू टाइम। टाइम इंटू टाइम कहां से आ रहा? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो टाइम का इक्वेशन था वो। क्लियर ना? टाइम इंटू टाइम इनटू एल का क्या है हमारा? एल के पावर में 1। क्लियर? ये दिख रहा है? इतना दिख रहा है डियर स्टूडेंट?
इतना क्लियर ना? उसके आगे जाते हैं यहाँ पे, ये जस्ट थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना। यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई करना है, m के पावर में 1 है, l के पावर में क्या होगा, l s to the 1, l के पावर में 1 मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है, मतलब क्या हो गया हमारा 1 + 1 2, तो l के पावर में क्या होगा हमारा 2। नाउ व्हाट अबाउट t, t के पावर में 1 इंटू t के पावर में 1, तो बट ऑब्वियस किसमें मल्टीप्लीकेशन के टर्म है, किसमें मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करेंगे उसको एडिशन, तो ts2 2 हो जाएगा, ts2 2 होगा, बट कहां है हमारा अपॉन के टर्म में, तो ts2 2 है बट ऑब्वियस पॉजिटिव है, तो अपवर्ड जाके क्या होगा ts2 -2, ts2 -2। नाउ डियर स्टूडेंट क्लियर हो रहा है? अब ना काइनेटिक एनर्जी ये आ रही है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी ये आ रही है, क्लियर? नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्रूफ करनी थी, इसका डायमेंशन क्या है हमारा m1 l2 t-2, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका क्या आ रहा हमारा m1 l2 t-2, मतलब क्या हुआ हमारा, क्या प्रूफ हो रहा है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा क्या है यस, यस और नो ऑप्शन था, हमारा क्या है यस। बट स्टूडेंट अगर आप जेडब्ल्यू या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, तो वहां पे अगर प्रूफ दैट आ रहा तो ऐसे करना है, वहां पे अगर ऑप्शन दे देगा आपको यस नो बोथ ऑफ देम इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो आपको एज पर द जेडब्ल्यू अगर कुछ कर रहे हो या आप गुस्सेट दे रहे हो कोई भी एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे इस टाइप का प्रूफ दैट फिजिक्स के ही आते हैं, इसी टाइप के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में आएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, क्लियर? तो हमारा क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर? तो जिसको रट्टाफिकेशन नहीं हो फॉर्मूला तो हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, जो मैंने एक मेथड बताया उसको रट्टाफिकेशन ना करके इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्या करना है, लर्न नहीं करना है, उसको क्या करना है अंडरस्टैंड करना, बस हमें वहां क्या आना चाहिए उस क्वांटिटी का फॉर्मूला, अगर उसका फॉर्मूला पता है तो उसका डायमेंशन बट ऑब्वियस फाइंड करते हैं। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन of kinetic energy, what is the dimension of kinetic energy, so it is m1 l2 t-2। now what is dimension for potential energy, it's a m1 l2 t-2, so dimension for kinetic energy and potential energy both are same, both are same, so after that we have to prove that अगर ये इक्वल टू नहीं आता तो हमारा क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको मैं ग्रुप में पर्टिकुलर इसके बेस पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पर्टिकुलर यू हैव टू सोल्व दैट क्वेश्चन एट योर होम, if any doubt then you can ask me, after solving that equation you have to send me, clear? now after completing this topic we have completed chapter number 2 over here with all the theoretical portion, we have completed all the topics and cover all the topics, and now we have already taken 11 lectures to complete this topic, we have taken the 11 lectures to complete this chapter. So basically why, because this chapter is indicating units and measurement, it's a main topic, it's a main chapter and the backbone of our life, because our day-to-day life is totally dependent on units and measurement also. If you don't have a knowledge about units and about this measurement then we can do anything यार, we can do anything। suppose हमारा आंसर आ गया, बट आंसर क्या है, अगर मैं बोल दूं मेरी है क्या हाइट है 5.9, 5.9 is what, it's nothing but it's a fit, so we must have a proper knowledge about this units and about this measurement। suppose कोई इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर कैसे करना आता ही नहीं है, अगर सर मेरे को स्केल यूज ही करनी नहीं है तो एग्जाम क्या दूंगा, अगर मैं वकील बन गया हूं, अगर मैं वकील बन गया या कोई क्या बोलते हैं खेत के बारे में इंफॉर्मेशन या लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मुझे मेजरमेंट नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरे फादर्स ने 100 एकड़ छोड़ के रखा है बट ऑफिस, अगर मुझे मेजरमेंट लेने नहीं आता 100 एकड़ होता क्या है, अब किसी ने बोल दिया भाई इतना बड़ा एरिया 100 एकड़ है, इट इज राइट, नो it's a totally wrong, so we must have a knowledge of units and the measurement। now today we already completed the chapter number 2 units and the measurement, and I am going to arrange a test for you on Sunday, at the same time, clear? On Sunday I'm going to arrange a test for all of you, it's a oral test, it's a oral test, so be ready for it, I will inform you time, I will inform you time in a group, okay? Now for that it's enough for today, please say bye to me and I would like to tell you bye, right? And please say bye to me, give me your thumb and give me your best wishes, dear. Now says bye, bye dear everyone, thanks for the today for paying your kind attention, we will meet here tomorrow with a new day and a new topic, it's a what, it's our taste session, it's our taste session, so don't be feel fear from that, says bye, bye sir, bye dear.